Khanum Memorial Hospital, Cancer Hospital and Research Center. We're all here to celebrate a dream that we all saw together. So this is really coming from, I'm going way off script, but this is really coming from a lifelong guidance. It started when we were in school, and Imran Khan would go to every school, raise every single rupiah in that, when we were there. Yes, please come over here. He's my partner in all the crimes we do. The salient features in red. So first of all, we aim to act as a model institution. We understand that no one hospital or two hospitals, or inshallah 3 hospitals with the opening of Karachi, will be able to treat all those patients that come in Pakistan with cancer. But we aim to show that it is possible to achieve excellence in Pakistan, that this is not an alien concept or something that can only be done in the West. We are a cancer hospital, obviously, so our services are very cancer-centric. We're not a general hospital. The most important part is the next bit that's highlighted, which is about irrespective of their ability to pay. So when patients are accepted into the system for treatment, it's entirely based on their diagnosis and the stage of disease. No questions are asked at that point as to whether they can pay for their care or not. It's only based on disease criteria. Once they're admitted to the system, then regardless of whether they're paying for their care themselves or whether someone else, donors such as yourselves, has paid for them, all the facilities that are provided are exactly the same. There is no difference, and physicians and nurses actually treating the patients are blinded to the patient's financial status. So when we're seeing patients, we don't know who's paying for themselves and who's being supported by someone else. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत चाहते हैं हम ताख़ीर के लिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हाथ में ये सिलसिला नहीं था। गालिबन यूएस गवर्नमेंट की कोई शटडाउन हुई है जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्लाइट्स जो थी वो मुकम्मल तौर पे तितर-बितर हुई थी। हम लोग जुमे वाले दिन जो थे वो शिकागो में थे, शिकागो में फंड रेजर था, कल शाम को अटलांटा में फंड रेजर था और फिर आज सुबह की फ्लाइट थी हमारी और हम लोग सुबह को तकरीबन 10 बजे से एयरपोर्ट पर मौजूद थे और फिर ये सुबह 10 बजे से पहले एक डिले हुआ, फिर एक कैंसिलेशन हुई, फिर दूसरी कैंसिलेशन हुई और वो करते 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 अभी ये शाम को वहाँ से 6:20 पे जहाज टेक ऑफ हुआ है। आए तो ना कपड़े बदले हैं, ना सामान का कुछ पता है कि किधर है और किधर नहीं है, बट ये कि क्योंकि आप लोगों के पास आना था, मायामी में पहुंचना था, तो बहुत बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि ये कॉज जो है, ये कॉज शौकत खानम कैंसर अस्पताल की, ये एक ऐसे अजीम इंसान की विजन है कि इस विजन को अब क्योंकि वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये अब हमारी डबल जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कॉज को जो है वो बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और बगैर किसी ताख़ीर के सबसे पहले तो आप लोग आ गए हैं, तो पहला कदम आप लोगों ने ले लिया। सो फॉर दैट आईड से गिव योरसेल्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अपने लिए जरा बहुत सारी जानदार तालियां बजाइए, बहुत बहुत। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द कॉज। आपने वीडियोस देख लिए होंगे, चूंकि हम देर से आए तो हमें नहीं पता, बट आई एम श्योर यू ऑलरेडी सीन द वीडियोस, आई एम श्योर दैट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉज एंड एवरीथिंग। सो अब बिना ताख़ीर के, क्योंकि मुझे पता है कल वर्किंग डे है, तो मैं बहुत जल्दी से अपने दोस्त, अपने साथी, उस लेजेंड को जिसने इमरान खान की शाना बशाना इस अस्पताल की संग बुनियाद भी रखी, बड़ी तारीख है उनकी, 92 का वर्ल्ड कप हो या और बहुत सी पाकिस्तान क्रिकेट की ग्लोरियस इनिंग्स का जिक्र हो, तो इनके बगैर वो मुकम्मल नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम the undisputed, the unquestionable greatest of all times all-rounders, the Sultan of Swing, Waseem Akram. Waseem. Assalamualaikum जी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है सबका? एक्सप्लेन तो कर दिया सारा, सुबह 10 बजे से हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, बट लाइक आई सेड कि कुछ भी होता हमारा प्लान था। अगर कोई और इवेंट होता तो मैं छोड़ के कमरे में जाके सो चुका होता हूँ होटल के, बट दिस लाइक आई सेड दिस इज सच अ इनक्रेडिबल कॉज। और ये पिछले 2 अस्पताल पहले थे वो आप लोगों ने बनाए हैं, आप लोग इसको चला रहे हैं, एंड द थर्ड वन एग्जैक्टली द सेम।
एंड आई थिंक ये शौकत खान की जो चैरिटी ऐसी है कि आप लोगों को सबको पता है लास्ट 3 डेकेड्स आपका पैसा डॉक ने भी एक्सप्लेन किया है कि जहाँ जाना चाहते हैं आप वहीं ही जाता है। ज़कात का है तो ज़कात के लोगों को ही मिलेगा। सो तीसरा अगले साल अभी नवंबर में डॉक दिसंबर में वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने एडवांस भी देखी है उसकी। इट्स द बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एंड दैट बिकॉज ऑफ यू गाइस। एंड मैंने कल भी कहा था, मैं कहता हूँ कि आई ट्रैवल अ लॉट, आई डू लॉट ऑफ चैरिटी इवेंट्स विद शौकत खान। आई बीन डूइंग इट 30 years। बट जब मैं अपने पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी को देखता हूँ, बहनों को यू नो भाइयों को बच्चों को, आई फील रियली प्राउड। आप लोगों की वजह से वो मुल्क चल रहा है। आप लोग इतना फील करते हैं लिविंग हियर एंड यू फील फॉर द कंट्री। सो वेल डन टू यू गाइस, सो प्राउड ऑफ यू। एब्सोल्युटली। अच्छा वसीम, फिर आज का दिन कैसा गुजरा आपका? मजा आया आपको? इसको कहते हैं अमेरिका। आपको शौक था आपको बहुत हमेशा से आपको है कि अमेरिका कराची लाहौर के एयरपोर्ट को गाली निकालते रहते हैं कि बड़ी निकम्मे एयरपोर्ट ने ताड़े है। आइश्वर इसी बेटे तो रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान का। आइसवेल, और खासतौर पे सुना है कि वो बड़े फ्लाइट कैंसिल होने को पूछता भी नहीं है, नोबडी इज बॉदर्ड। हाँ, नहीं तो फ्लाइट पे कौन पूछ रहा था? मैं फ्लाइट पे भी किसी ने नहीं पूछा। हमको शिकागो इस एयरपोर्ट पे तो भूल गया हूँ। एयरपोर्ट भी अटलांटा, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। वो हम ई गेट पे गए ट्रेन में पकड़ के, मैं समझा साहिवाल चल रही है नहीं है ट्रेन। वहां जाके 2 घंटे में पता लगा गेट एफ पे है। वो वापस है, एक और ट्रेन लेके जाओ। बट क्वाइट एन एडवेंचर दैट वी हैड। वसीम, मैं चूंकि बहुत से सवाल हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे चूंकि मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने इतना इंतज़ार किया है तो इनके सवालों पे जल्दी से आ जाएं। लेकिन मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि दुनिया की बड़ी बड़ी अलार्म क्लॉक्स आपने देखी होंगी जो बिल्कुल वक्त पे घंटी बजती है और आपको जगा देती है या आपको करवाती है, मगर वसीम अकरम से बड़ी अलार्म क्लॉक दुनिया में कोई नहीं पैदा हुई। क्योंकि इट डजंट मैटर कि हम किस टाइम जोन में हो, कितने थके हुए हो, क्या हुआ हो, सुबह 6 बजे पता नहीं कहाँ रोशनियों की किरणें जो है ना वो दस्तक देती हैं इनकी खिड़की पे, तो ये मेरे दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर देते हैं, आजा जिम चलिए। और मेरे हालात से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए मेरा जिम में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वसीम अकरम फिर भी जो है वो मेरी जान के पीछे पड़े रहते हैं। खुदा का वास्ते आज कल सुबह ना कोशिश करता हूँ लेकिन तो सोते फट ना जाए। वो लोगों को एक चीज याद रखिए, कभी सुना है कि घट खाता सी मर गए, ऐ सुने छत्ती रोटी खा के सुनता सी सुबह आँख नहीं खुली। सिखाने में भी लेस इज मोर। ये यार नो, खाने की बात नहीं, मैं तो जिम की बात कर रहा हूँ। और खाने से मुझे खाने का एक और शिकवा है मुझे आपसे। वो अभी आपके इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, अभी कुछ महीना पहले 15 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में थे आप, बेगम की खिदमत कर रहे थे अपने घर पे, ठीक है ना। तो सुबह सुबह नाश्ता की रात का कीमा जो है बचा वो गर्म हो रहा है, नाश्ते पे अंडों के साथ खाया जाएगा। तो मेरे नाल आते हो तो कहते हो वो एवोकाडो के टोस्ट खाइए चल के, मेरा क्या कसूर है भाई इसमें? अभी वो वन ऑफ था, साथ एवोकाडो खाया था। तो वहाँ आप लोग तो यहाँ रहते हो, वहाँ तो सारे काम जो खुद करने पड़ते हैं सारे। मे बी मेड आ जाए, कोई वंस अ वीक आ जाए, बाकी तो बिल भी बाहर आप ही रखने हैं मेरे पास होते हैं। Doesn't matter who you are. That's true. That's my job on Monday night to put the bills outside. वैसे मैं एक चीज सोचता हूँ कि शनीरा भाभी और उनकी सास यानी कि आपकी वालदा का रिलेशनशिप कैसा है घर में? It's an ideal best relationship ever। जो फिल्मों में नहीं आप ड्रामों में देखते हैं, सास और बहू का रिलेशनशिप है। कभी कोई आर्गुमेंट नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं। उसकी रीजन है मेरी माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी, मेरी बीवी को पंजाबी नहीं आती। और मेरी माँ कहती जरूर है अंग्रेजी आती है, फर बड़ी तेज है। मैं कहती उसकी जुबान अंग्रेजी है। अरे that makes sense। 1992 का वर्ल्ड कप, वो तारीखी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जो कि मेरे यकीन है कि आप में से कोई नहीं भूलता होगा, आप सबको याद होगा। तालियां बजाएंगे आपको 92 का वर्ल्ड कप तो याद है ना? वो 2 बॉलें वसीम अकरम, आपकी 2 शानदार बॉल्स जिसके बाद मैच हमारे हक में आ गया। वो ओवर देने से पहले, बल्कि उस मैच से पहले कप्तान इमरान खान ने क्या बोला था आप सबको? हाँ, वो तो एक तो वर्ल्ड कप की स्टोरी है ना, बट फाइनल से पहले ना उन दिनों 90s में हमें सिर्फ किट मिलती थी, प्रैक्टिस गियर नहीं थी मिलती। अब तो इनको 3-3 बैग मिलते हैं ना सबको, हमें प्रैक्टिस गियर नहीं थी मिलती। सो वी हैड टू बाय आवर ओन टी-शर्ट्स फॉर प्रैक्टिस, फॉर वार्म अप एंड देन वेयर द किट गियर ड्यूरिंग द गेम।
तो मैं जाके तब अंग्रेजी भी कम ही आती थी, वो जस्ट डू इट देख के लिखने लगा। मैं कहता मतलब है आता है वो नाइकी का जो था जस्ट डू इट, मैंने वो खरीदी। इमरान भाई अजाज ने भी खरीदी, रूममेट था इमरान। अगले दिन जब मैच में फाइनल में पहुंचे ना, ग्राउंड सामने ही थी और एमसीजी के सामने ही वो स्टेडियम है, वो सॉरी होटल है। सो एवरीबडी वाज वॉकिंग। आइडिया कि 2:30 बजे आपने ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाना, 2:30 बजे सॉरी 12:30, 2:30 बजे मैच स्टार्ट था, 12 साढ़े 12 के दिन में आ गए। तो वहाँ पे स्किपर ने मीटिंग की, उन्होंने टी शर्ट पहन के आया, वो टाइगर की टी शर्ट एक बड़ी ज़बरदस्त है महंगी सी। तो फिर उन्होंने पूरी तकरीर की। तकरीर के बाद उन्होंने एंड में अंग्रेजी में कहा कि यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन कॉर्नर टाइगर्स, जब कॉर्नर टाइगर होता है तो वो अटैक करता है। तो पूरी अंग्रेजी में ही बोल के चले गए। आधे लड़के कहते भाई की क्या के गए नहीं। मैंने जब कोई चीता आए तो वो एक कोने में हो तो क्या होता है, कहना पता नहीं। मैं क्या वो अटैक करता है तो उससे अटैक करना है। मैं क्या ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोचते तो प्रेशर में आ जाते ना सारी चीजें। वही मैंने जाहिद फजल की स्टोरी बताई थी। हमारा उसी सियालकोट का बड़ा यंग प्लेयर जाहिद फजल, जिसे इमरान भाई कहते थे कि फ्यूचर का जहीर अब्बास है, टॉप प्लेयर। अब वो था बच्चा 21 साल का होगा, वर्ल्ड कप फाइनल वाज अ बिग स्टेज, 12th मैन था कि उसमें तो 12th मैन में कोई अगर कोई बाहर आता है कोई ट्रीटमेंट कराने या किसी ने बाथरूम जाना तो वो जाके फील्डिंग करेगा, डेजिग्नेटेड 12th मैन। और यूजुअली वर्ल्ड कप स्पेयर एनी गेम पे आप मेक श्योर करते हैं आपका नाड़ा बंधा हो पैंट का, यू नो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू, एंड ही फॉरगॉट। अब वो फील्डिंग करने आया, वर्ल्ड कप फाइनल है, फाइनल 90,000 पीपल वाचिंग एट द एमसीजी, 90,000 ग्राउंड में बाकी तो मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। अब वो पता नहीं कि स्क्वायर लेग पकड़ा था, गेंद गया, डाइव मारी, पैंट ऐसे इसने डाइव में पैंट ऊपर चढ़ाई है। तो मैंने उसे बाद में बोल दिया, मुझे मैंने यार नाड़ा के बांध लेना चाहिए, मैंने पाए प्रेशर इसको लिया। शुक्र करे प्रेशर में पतलून की भूल के आ गया था। उसने डाइव में नाड़ा हुआ, अपनी पैंट ऊपर कर ली पूरी। चले ये तो वो यादें हैं जो हमें याद, ये नहीं पता था हमें तो वर्ल्ड कप की कहानी पता है कि वर्ल्ड कप था, ये था, बट अच्छा किया आपने रिफ्रेश कर दिया। दोस्तों ये हमारा सवाल जवाब का सिलसिला जाएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो हाथ उठाइए ताकि मैं आप लोगों का सवाल जो है वसीम अकरम से जो यहाँ पर पूछा जा सकता है। एनीथिंग दैट यूड लाइक टू आस्क द ग्रेट मैन हिमसेल्फ, द लेजेंड हिमसेल्फ, वसीम अकरम, एंड वी कैन किधर राइट देयर, ऑलराइट जी, इसके माइक आ रहा हूं मैं आ रहा हूं, रुक जाइए। I just have a request. I heard you so many times, you sing very well. Yes, I heard you so many times. I don't know what you were having, man. I'm not even a bathroom singer. Yeah, I'm a singer, rap. Yeah, he's a rap dude. आंटी जज्बाती हो गई है। वैसे ये गाना आपका है बड़ा जबरदस्त। वो गाना जो है वो बुनियादी तौर पे हमारा जो प्रोग्राम है पेविलियन, उस पे भाईजान ने गाया था उनको। मैंने पता जो आजकल गाने आ रहे हैं वही गाने आ रहे हैं ना। हाँ बताएं। तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास जाऊंगी, तेरी अम्मी से पूछूंगा, तेरे अब्बू के पास आऊंगा, आवे जा, इसी तरह के गाने गाते हैं आजकल। तो समझ नहीं आ गया यू शार्प क्विक, बट 200 से ज्यादा विकेट होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल में। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। उसी में एक बर्निंग क्वेश्चन है कि मौजूदा पाकिस्तान की क्रिकेट की सूरत हाल ऐसी क्यों है? जब पाकिस्तानी मेरे से पूछता है तो मुझे उस पाकिस्तानी की अकल पे शक होता है। अब जो मुल्क का हाल है ये उसी की प्रोडक्ट है ना ये। So, जो not saying politically तो जो भी है, I don't follow politics as much, but पिछले 4 सालों में 4 पीसीबी के चेयरमैन बदल गए, 3 बदल गए, ज़का अशरफ आ गया, फिर सेठी आ गया, फिर ज़का आ गया, फिर मोहसिन साहब आ गए। सो लीडरशिप जब बदलती रहती है तो एवरीथिंग चेंजेस, कंसिस्टेंसी है ही नहीं। अब अगर आप हमसाय मुल्क को ले लें, वो पिछले 80 साल से एक ही स्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास से चली जा रहे हैं, वही चला रहे हैं, उसी में पैसा डाली जा रहे हैं। हमारे यहाँ चेंज होते जा रहे हैं और वी आर वन स्पोर्ट नेशन, वी आर वन स्पोर्ट नेशन। हमसे वो भी ऑर्गेनाइज नहीं होती है। It's unfortunate. It is, it is. Now, since we're all gathered here, we talk about the Shaukat Khanum Cancer Hospital and how the healthcare sector in Pakistan needs all these organizations. मैं एक बात कहता हूँ अक्सर दोस्तों, ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान, एक मिनट के लिए अगर आप लोग गौर से सोचें, अगर आप पाकिस्तान से शौकत खानम कैंसर अस्पताल को निकाल दें
नमल यूनिवर्सिटी को निकाल दें, ईदी वेलफेयर ट्रस्ट को निकाल दें, SIUT को निकाल दें, इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क्स को निकाल दें, तो आप सोच सकते हैं कि पीछे कुछ भी नहीं बचता पाकिस्तान के वहां पे। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं जानता आप कौन हैं। आप we are here for a cause and I will steer away from anything like that. But on a serious note, I think that we must understand कि पाकिस्तान में ये जो नॉन प्रॉफिट्स हैं इनका कितना बड़ा रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और वो आप लोगों की वजह से डायबिटीज वाला पत्थर बिठाते हैं साइकिल के ऊपर, हो सकता है यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। Number one in the world now. It is actually something very, very concerning. I think we need to take a closer look at that. But I just wanted to tell you that this is an incredible story, your story of discipline and dedication that you've lived with it for 25 years. मैंने उम्मीद थी ना पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में थी या डेवलपिंग कंट्री में, एक तो हम लोगों की बड़ी बातें सुनते हैं, डॉक्टर की नहीं सुनेंगे, आपने ड्राइवर की सुन लेंगे। ड्राइवर कहेगा कि उत्थे एक पीर है वो आपको शक्कर देगा और आपने अपना ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करना, पता लगा बंदा ही मार गया। So listen to professionals, that's why these guys are there. Yes. इसीलिए तो अब कराची या लाहौर उतरो, लाहौर में तो नहीं है इतना, कराची में आमली बाबा, बंगाली बाबा, महबूब आपके कदमों में अभी तक they still buy it. Yeah. I know a friend of mine who needs that number. I will give it to you. महबूब आपके कदमों में होगा भाई। कराची से मुझे याद आया, आपको पता है कराची में अभी एक नई चीज शुरू हुई है, ई चालान। वो इलेक्ट्रॉनिक चालान हो रहे हैं, अगर आपने बेल्ट नहीं पहनी हुई और सब कुछ, अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका चालान जो हो जाता है और आपको मैसेज आ जाता है कि जी आपका चालान हो गया, इतने पैसे आप जमा करा दें। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कराची की सड़कों की जो हालात हैं उसके ऊपर गाड़ी चलाने में बंदे को चालान नहीं होना चाहिए, अनाम मिलना चाहिए गाड़ी चलाने में। बिल्कुल सही है। ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, कराची में वसीम अकरम की एक फेवरेट जगह है जो कि यानी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इनके दिल में भाई हुई है वो जगह है, बता, वो लियारी नदी है, बहुत मोहब्बत करते हैं लियारी नदी से। नहीं, आपको मैं कराची नया मूव हुआ, अब कराची वालों को पता है मैं क्या बात करूँ, मैं तो लाहौरिया हूँ। आपने जाना था एयर ऑफिस साइट, वो आप जाते हो गुलशन बाग, उधर से स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम क्रॉस करके वो सीधा जाते हो, फिर वहाँ ट्रैफिक होती है तो आप लेफ्ट में ट्रैवल 3 साल पहले जा रहे थे पहली दफा, कह रहा सर लियारी नदी से ले लूँ, मैं क्या लियारी नदी, मैं कोई नदी से मुराद पंजाबियों की नदी मीन्स क्लीन वाटर, एंड मैं क्या ले नज़ारा भी देख लेंगे लियारी नदी का, और नदी से क्या होता गंदा नाला सी। I didn't call it Nadi. I said it's not a Nadi. It is Ganda Nala, and it stinks. It is terrible. So that is a landmark that we have. But Karachi, still is the city जो ड्राइव करती है पाकिस्तान की मईशत को, और जो ड्राइव करती है पाकिस्तान के सारे जितने भी ये ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं, चैरिटी एफर्ट्स हैं, नॉन प्रॉफिट एफर्ट्स हैं, वो कराची शहर करता है। एंड यस